Good morning, dear kids, and this is your problem number 15 of exercise 22B. And it says, from the top of hill, the angle of depression of two consecutive kilometer stone. What do you mean by consecutive? Consecutive मतलब एक के बाद आने वाला एक. So अगर ये stone है, ये भी stone है, इन दोनों में distance दिया हुआ है 1 किलोमीटर का. आप यहाँ पे खड़े हो और आप देख रहे हो angle of depression से, तो एक stone को देख रहे हो और दूसरे stone को देख रहे हो. The angle of depression is, this is 30 एंड दिस इज़ 45. जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब नीचे की तरफ आता है तो ऑल्टरनेट एंगल बन के वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है. सो दिस इज़ 30. सो कैन आई टेक दिस एंगल एज 30 एंड दिस एंगल एज 45 बाय ऑल्टरनेट एंगल्स? येस, आई कैन टेक. सो नाउ वी हैव, if I name this as H, L, A, B, so I have, can I go, what I have to find, let me check. Find the distance of two stones from the foot of hill. तो ये L से आपको A का डिस्टेंस बताना है फर्स्ट स्टोन का, फिर L से आपको B का डिस्टेंस बताना है सेकंड स्टोन का. सो यू हैव टू फाइंड LA एंड LB. दिस इज योर क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, कैन आई गो विद इन ट्रायंगल? इफ आई एम टेकिंग ट्रायंगल HLA, इसको रख देते हैं x, इसको रख देते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. In triangle HLA, can I go with 10, 45 is equal to HL upon LA. 10, 45 is 1. HL I don't know. LA I have x. Therefore, HL is also x. So, I got this as x. Now, I'll go in bigger triangle, that is in triangle HLB. You have 10, 30 is equal to HL upon LB. HL you have kept it as x. LB अगर आप ध्यान देंगे तो ये होगा x plus 1 एंड आपके टेन 30 की वैल्यू है 1√3. व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ x, व्हाट यू हैव टू आस्क. x मतलब क्या? आपका LA का डिस्टेंस मिल रहा है, मतलब आपका फर्स्ट स्टोन फुट ऑफ द हिल से x डिस्टेंस पे है. व्हाट अबाउट द सेकेंड स्टोन? सेकेंड स्टोन आपका 1 किलोमीटर और थोड़ा दूर है, तो जो आपका x का वैल्यू आया है उसमें अगर आप +1 कर रहे हैं तो दैट विल बी योर LB. Getting my point? So you will get both the distances. So the question was finding LA and LB. You will get both the things. Clear? Okay, next problem number. Okay, we have exercise 22C, problem number 1, which says find AD. You have been given a structure. So यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है. वी हैव AEDCB and this is given as 5. If this is 5, this will be 5. This is given as 32 and this is given as 20. So if this is 20, this will be 20. Now if I go in triangle ABE, I have BE is equal to 20. Can I use 10? 32 is equal to perpendicular अपॉन बेस. 1032 की वैल्यू मैं आपको दूंगी 0.6249 इज इक्वल टू AE. वी डू नॉट नो. BE is 20. When I cross multiply, I'll get the value of AE. Is that clear? What we have to find? Find AD. So AE अगर आपके पास मिल गया, अगर आप उसमें ED ऐड कर रहे हो तो AE प्लस ED इज इक्वल टू AD. ED की वैल्यू आपके पास 5 है. AE आपने अभी अभी यहाँ से फाइंड किया है, तो आपके पास AD की वैल्यू आ जाएगी. क्लियर? फर्स्ट ही में है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही है उसका सेकेंड पार्ट. अगेन द फिगर इज गिवन. लेट मी ड्रॉ इट. सो इट विल गो D, C, B, A और ये निशान दिए हुए हैं 2 एंड दिस इज D एंड दिस इज 30. ओके 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 ओके, लेट्स स्टार्ट. एंड दिस इज गिवन एज 48. नाउ CA is equal to CB. तो क्या मैं बोल सकती हूँ एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस, बिकॉज द बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल. गेटिंग माई पॉइंट. इफ दिस इज 48, तो ये लीनियर पेयर से क्या मैं एंगल लिख सकती हूँ? एंगल ACD प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180. वाई? लीनियर पेयर एंगल्स. तो वहाँ से अगर आप चाहें तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ, what do you want? Yes, you can get the value of angle ACB. Okay, so that will be 180 minus 48 and that's 132 degree. So you got this as 132.
If you subtract from 180 in this triangle you will get 48. उसको आधा इधर 24, इधर आधा 24. Clear? So you got that as 24. Now if you have, what do you want to find? Okay, nothing is given. Yes, 30 is given to you. Yes, hypotenuse is given to you. In this case, what you can go for, in directly bigger triangle ABD, angle B is 24 degree and hypotenuse AB is given as 30. अब hypotenuse के हिसाब से अगर आप AD form करोगे तो which you should go for? Perpendicular upon hypotenuse is your sine. So you should go for sine 24 is equal to AD upon AB. Am I correct? Sine 24, I'll give you the value, that is 0.4067. AD आपको फाइंड करना है. AB 30 दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके AD फाइंड कर दो. Isn't it easy? The only thing was there was an isosceles triangle, थोड़ा एडिशनल आपको दे दिया गया था, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सब सेम है. Clear? Next is your problem number 2. Problem number 2 has a figure something like this. We have P, Q, S, R, and this is given 60. This is B, this is A. In the following diagram, AB is the floorboard. Okay. PQRS is cubical box. Okay. Cubical means all sides equal. With edge 1. So 1, 1, 1, 1. Okay. Angle B is 60. Calculate the length of AB. So you have to find AB. AB पता नहीं है हमको. अच्छा, बाकी हम लोग का पता है. ये लाइन पैरेलल है इसके. पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर. ओके. नाउ इट्स अ क्यूबिकल बॉक्स. व्हाट वी कैन डू, लेट्स स्टार्ट. कैन आई टेक एंगल APQ is equal to angle ABR, that is, this is also 60. Corresponding angles, if the lines are parallel, corresponding angles. Okay, now this is 1 unit PQ and this is 60. Can I go in this triangle, that is in triangle APQ? If I go for 1060 is equal to AQ upon PQ. AQ we do not have 1060 value, we have AQ and PQ is 1. So AQ we will get root 3. AQ you got root 3. And what is AR total? AR will be AQ plus QR, that is root 3 plus 1. Now you take a bigger triangle, that is in triangle ARB and go for 1060. So in triangle ARB, okay, you can go for, don't you want hypotenuse, no? So go for sine. Sine 60 is equal to perpendicular upon hypotenuse, that is AR upon AB. Sine 60 की वैल्यू आपको पता है root 3 2. Perpendicular AR अभी हमने किया है root 3 plus 1. So it will be root 3 upon 2. AR है root 3 plus 1 upon AB. जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, you will get the value of AB. See, solving is your department, beta. That much you should do. Okay? This was your figure. Clear? I'll jump on to question number 3. And it says calculate BC. So you have a figure given here. And you have to find, this is A, B, C, D. This is given as 42. This is given as 20. This is given as 35. This is given as 90. Okay. So let's start. अगर आप ध्यान देंगे तो you will get what you have to find. You have to find BC. तो उसके लिए अगर मैंने BD निकाला and CD निकाला, उसको subtract किया, तो I'll get BD minus CD. If I subtract, I'll get BC. Yes. So you have to, your target is to find CD. In small triangle you can go for finding CD, and then in the bigger triangle you can find BD, and दोनों को subtract कर दो. Isn't it easy? Yes, it is easy, but the only thing here is the 42 angle is given here.
So if those who could not understand this, that this is given as 42 and this is given as 90, can do one thing, that you can use the addition sum property of triangle. आप दो एंगल्स को ऐड कर दीजिए, 180 में से माइनस कर दीजिए तो आपको बेस एंगल मिल जाएगा. चाहे तो आप वैसा कर सकते हैं, और एल्स व्हाट यू कैन डू इज़ आप इसको 42 को ही यूज़ करो. ये 20 दिया हुआ है. अब आप ध्यान दोगे तो 42 का ये बेस है और ये उसका परपेंडिकुलर है. गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज परपेंडिकुलर. 42 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये परपेंडिकुलर है. दैट इज सी डी इज परपेंडिकुलर एंड ए डी इज बेस. So what you can write is, you can write tan 42 is equal to CD perpendicular AD base. सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा क्योंकि 42 ऊपर की तरफ है तो उसका बेस वो है, AD बेस है, उसके ऊपर वो खड़ा है, और उसका परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री है वो CD है. गेटिंग माई पॉइंट? इफ़ यू यूज़ दैट, tan 42 की वैल्यू मैं आपको दे देती हूँ. It is something like this. CD you do not have, AD you have 20. When you cross multiply, my dear kids, you will get the value of CD. ठीक है, तो आपके हाथ में CD तो आ ही गया. What you have to find next is BD. तो BD आप बड़े ट्रायंगल tan 35 यूज़ करके कर सकते हैं. tan 35 की मैं वैल्यू आपको दे देती हूँ. tan 35 वैल्यू इज 0.7002. You can use this and find the value of BD. Once you got BC and BD, once you got CD and BD, what you can do is you can subtract them and you will get BC. Clear? Okay, so that was the third. Next is fourth. Question number 4 says, we have fourth, calculate AB. So we have this and this. This is given as 47, this is given as 5, 6 and this is given 30. A, B. इसको C लगा दो, इसको D लगा दो, इसको E लगा दो. अगर इस ट्रायंगल में जा रहे हो तो ध्यान दो, जो ये 47 है, ये 90 डिग्री है, तो ये उसका हाइपोटेन्यूस हुआ, ये उसका बेस हुआ, ये हाइपोटेन्यूस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ. सो यू हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर एंड द हाइपोटेन्यूस इज गिवन. सो गो फॉर sin 47 in this triangle. And in this triangle you can go for, you have hypotenuse and you want to find base, so you can go for cos 30. ठीक है, cos 30 तो आपको टेबल से मिल जाएगा. sin 47 की वैल्यू मैं आपको दे देती हूँ. दिस इज समथिंग लाइक दिस. So once you use this, you will get AC and CB and you have to add them to get AB. क्लियर? सिर्फ डिफ़िकल्ट पार्ट यही है कि जब एंगल ऊपर आ जाता है, तो जिनको क्लियर नहीं हो रहा है कि कैसे करें, एंगल ऊपर आ जाता है तो वो लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से नीचे वाला एंगल, ये वाला एंगल फाइंड कर दो, ये वाला एंगल, एंड देन गो फॉरवर्ड विद द सम. और जिनको समझ में आता है कि 47 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसका बेस है, EB इज़ द बेस, EC इज़ द हाइपोटेन्यूस एंड CB इज़ द परपेंडिकुलर. यू कैन यूज़ परपेंडिकुलर, मतलब CB आपको फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है एंड परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस से एक ही रेशियो बनता है, दैट इज साइन. तो आप sin 47 से जा सकते हो, उसकी वैल्यू मैंने आपको दे दी है. और यहाँ पे तो पॉइंट ईजी है, बट वाई आई एम यूजिंग cos 30 बिकॉज हाइपोटेन्यूस इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड AC. AC इज़ द बेस फॉर 30 डिग्री. एंगल 30 डिग्री के लिए AC बेस है, तो बेस आपके पास आपको फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, सो यू कैन गो फॉर cos because cos is based upon hypotenuse. Clear? Once you got AC and CB, you have to just add them. Okay, next is question number 5. Question number 5. The radius of a circle is given as 15 centimeter. So this is your circle. And the radius is given as 15 centimeter. Further, and the chords AB subtend an angle of 131. अच्छा, आपको ये पता है कि सर्कमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, और अगर इसका नाम लिख दिया AB और ये सबटेंड कर रहा है एंगल, इसका मतलब ये कॉर्ड एक एंगल बना रहा है सेंटर पे जो कि है 131 डिग्री. Using trigonometry, calculate the length of AB. Now if I join this and put here CD,
सो कंस्ट्रक्शन में आप डाल सकते हैं सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है। अब ये आपको बता दूं कि इफ़ दिस इज़ 15, this is 15, that means the radius are same, so this will be same. Okay, if I keep this as x and this as x in my angle sum property, if I go in triangle ACB, I have x plus 131 is equal to 180. From there I'll get the value of x as 2x as 49, so x will be 49 upon 2, दैट इज़ 24.5 डिग्री। तो आपको ये वैल्यू ए की मिल जाएगी 24.5 डिग्री और यहाँ से बी की वैल्यू मिल जाएगी 24.5 डिग्री। गॉट माई पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे आपको एंगल मिल गया, व्हाट यू हैव टू फाइंड इज यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है। अगर ए बी चाहिए तो उसके लिए ए डी निकालो पहले और यहाँ से डी बी निकालो। अगर आप ए डी निकाल रहे हो तो ए डी के लिए आपके पास डी बेस एंगल है, उसका हाइपोटेनस दिया हुआ है और आपको बेस फाइंड करना है, तो यू कैन गो फॉर कॉस। शैल वी गो फॉर कॉस बिकॉज सी डी इज नॉट अवेलेबल और यू वॉन्ट टू फाइंड सी डी फर्स्ट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर। आपको सी डी भी बाद में फाइंड करना ही है, तो आप सी डी चाहे तो पहले सी डी फाइंड कर दो। सी डी फाइंड करना है, उसके लिए हाइपोटेनस दिया हुआ है और आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो आपको साइन के थ्रू जाना पड़ेगा। तो यू कैन यूज़ साइन 24.5 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन 24.5 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सी डी, बेस आपका है सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस सी माय गॉड ए सी। सो दैट इज साइन 24.5 डिग्री इज इक्वल टू सी डी आपके पास नहीं है, ए सी आपके पास 15 है। साइन 24.5 की वैल्यू मैं आपको दे देती हूँ, सी डी आपको फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई गेट द वैल्यू ऑफ सी डी। वंस आपके पास सी डी आ गया मतलब परपेंडिकुलर आपके हाथ में आ गया और अब आपको बेस फाइंड करना है, बेस मतलब ए डी फाइंड करना है, तो विच वी विल गो फॉर परपेंडिकुलर और सॉरी बेस आपको फाइंड करना है, हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है, या 10 से भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको जिससे जाना है नो प्रॉब्लम, दोनों तरीके से आ जाएगा। अगर आप हाइपोटेनस यूज़ कर रहे हो, ए सी यूज़ कर रहे हो और आपको ए डी फाइंड करना है बेस, तो यू गो फॉर कॉस। तो कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस 24.5 इज इक्वल टू बेस है आपका ए डी, हाइपोटेनस है ए सी। कॉस 24.5 की वैल्यू मैं आपको दे देती हूँ, ए डी आपको फाइंड करना है, ए सी आपके पास 15 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए डी मिल जाएगा। जैसे ही ए डी आ गया तो आपको ये पता है कि जब हम सेंटर से, आपके पास शायद लास्ट ईयर थ्योरम था, जब हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड की तरफ, तो इट डिवाइड्स द कॉर्ड इन 2 इक्वल हाफ्स। सो कैन आई से ए डी इज इक्वल टू डी बी? यस, सो ए डी एंड डी बी आर इक्वल। सो ए डी की जो वैल्यू आएगी वही डी बी की होगी, एंड व्हेन यू ऐड देम यू विल गेट ए बी। क्लियर? So you got AD from here, and AD and DB are equal. When you add them, you will get AB. That's what we wanted to find, and we have wanted to find the central distance of center from the chord, that is CD. तो CD तो हम पहले ही find कर चुके थे. So 2 parts are clear. Okay, I'll stop it here. God bless.